कानपुरी मिक्सचर भाई लगती तो कैडी। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि पिछले 2 सालों में मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स हैव ईदर स्टार्टेड ट्रेडिंग और हेटिंग वुमेन, मे बी बोथ ऑफ देम टुगेदर। मोस्टली एक ही बंदा दोनों चीजें सिखा रहा होता है, तो क्या ही करें। टू मच इंसेल प्रोपेगेंडा, टू मच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोपेगेंडा हैव लेड किड्स इनटू बिलीविंग भाई 13 की उम्र में भाई जीजी हदीद अगर 8 चाट के दिन की शुरुआत नहीं करवा रही ना, आई फेल्ड इन लाइफ, टाइम इज रनिंग आउट। स्कूल किड्स आर नाउ फ्लॉन्टिंग ऑन देयर क्लासमेट्स आफ्टर सेविंग देयर फकिंग पॉकेट मनी। मैं ना इन्वेस्ट करूंगा while you guys enjoy your life like normal kids because you're not legally allowed to work right now. And tired of winning, and you say, please, it's too much. I get the entire idea of financial stability at a very early age, but भाई उसके लिए पहले financial literacy तो attain कर लो। I want to trade, but don't understand कि it's practically gambling even after years of practice. The best chance for you to earn big in the trading scene is when your risk appetite is so fucking big कि उतनी मार्केट कभी गिरेगी ही नहीं। मैं ना भाई day 1 forex trading करूंगा, वो ना भाई कैंडल, वो न्यूज भाई न्यूज, वो ना भाई वो फिर ना ईमान गाजी, फिर ना and then their accounts die randomly because on a certain random Monday a giant bank decided कि आज है ना मार्केट क्रैश कर देते हैं, and sooner or later they die as well because of that. But ये पूरा cult form हुआ कैसे? Fake financial advisors showing up on mainstream podcasts. भोसड़ के कुछ बोला था मैंने किसी वीडियो में? I mean recently I am never wrong. What the fuck is this, Miss Secretary of Raj Shamani? Paid podcast? That was an actual fucking leak by the way. Anyway, Umar Punjabi नाम पता होगा, young phenomenon, trading legend according to his own self. राज भाई के पॉडकास्ट पे आते हैं एंड वहां पे माइक पे हक देते हैं। हाइपोथेटिकली 200 करोड़ की प्रॉफिट, लाइफ टाइम प्रॉफिट, 25% के रिटर्न्स आ रहे हैं उस प्रॉफिट पे भाई के पर मंथ। नाउ आई एम very bad at maths now because of brain rot, but this guy will tell you. अगर उमर भाई इसी स्पीड से चलते रहे तो वो 18 महीने में बिलियनर बन जाएंगे, 39 महीने में एशिया के रिचेस्ट मैन बन जाएंगे, 64 महीने में उनकी नेटवर्थ इतनी हो जाएगी कि वो यूएस की जीडीपी को बीट कर देंगे। ये सारे स्कैमर्स एक जैसे क्यों लगते हैं, मतलब लाइफस्टाइल में और दिखने में? Dude's got a website called Alpha Trader. You cannot make this shit up and kids fall for it. Podcast तो उड़ी चुका है दोस्तों, like my hairs. I wonder why. Adults get it, okay? उनको पता होता है कि most scammers कैसे लगते हैं. We have a checklist for it, and the unoriginality of that checklist never fails to amaze me. Let's start. Handsome, really young dude, luxurious lifestyle with a compulsion of a rented Lambo. Main earning trading से है, but बैंड फिर भी कोर्स बेचने पड़ रहे हैं। बंदा ना बहुत कंसिडरेट है, बहुत ही हम्बल है एक्चुअली, तुम्हारी केयर करता है वो, so that's why he's selling the courses at a cheap price. Oh, comes from a struggle prone past by the way, वो मत भूलना। Alpha male red pilled reference in the product names and a hatred for women, so most probably a micro penis as well. कुछ पैटर्न्स मैच हुए उमर भाई के इस लिस्ट में से या you decide. And there are legitimate ways to make money in the market, okay? बहुत सारे तरीके हैं, like SIPs are a really good option अगर तुम टाइम दे सकते हो तो, because they are really slow and they are logical and make sense to invest your money into for longer run. But sense थोड़ी सेल होती है YouTube पे, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजिंग में impulse सेल होती है। भाई आप है ना भाई 20,000 इन्वेस्ट कर दो भाई सिप में, भाई 30 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे भाई, with a side of compensation from the bank staff itself. अबे भाई ये पहली बात तो SIP is a marathon type shit, okay, that you can use at your retirement when you are like 70, 60, whatever. लोग बैंड अपनी अर्निंग का 90% SIP में लगा रहे हैं। क्यों भाई? मैं ना करोड़पति बन जाऊंगा भाई, अभी भाई हगते हुए बन जाऊंगा भाई, खत्म होने से पहले ना there will be SGM standing outside my toilet door to wash my ass. And plus most financial advisors ये तो बोल रहे हैं कि SIP कर लो भाई 20,000 साल के लिए, but no one seems to be pushing the idea of inflation. Not this, okay? This is not a pyro video. According to ChatGPT, क्योंकि मैं अब dumb हूँ, 1 crore in roughly 30 years due to inflation will have the purchasing power of around 18 lakhs. And ये तब है बैंड जब मार्केट की मान पिटे on a random day, जो कि होता रहता है, but I'm not equating it just for your happiness sake. अब भाई ये सुन के भूखा ना मरने लगना प्लीज भाई, 2 की जगह ना भाई 1 रोटी चबा लेता हूँ भाई, परसों तक मिलियनेयर। भाई बेटा ना बीटेक करने बोल रहा है भाई, उसे ना भाई सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देता हूँ बैंड को। लड़की ना MBBS करने को बोल रही है, उसको ना खैर उसे पढ़ाना ही क्यों है। People start chopping their life's necessities in half to create a better life. अबे भूखा मर के अगर जीवित बच पाया तो ही तो जीवन जी पाएगा ना। That was a bar. I think खाने पीने में से पैसे बचा के तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, okay? Unless you are eating ass, तो छोड़ना सेंस बनाता है। But basic nutrition नहीं भाई, वहाँ पैसे मत बचाने लगना, okay? And education में भी don't cut corners in terms of education, मतलब college, school, whatever. And the most important part,
कपड़े। आई नो इट फील्स एज कमिंग फ्रॉम मी, 2 ही टी शर्ट है मेरे पास अकॉर्डिंग टू द वीडियोस, बट बैंड प्लीज ये ड्रिप मत रॉक करते दिखाई देना ना मेरे को। थ्रिफ्ट स्टोर्स आर अ थिंग। वैसे ही बैंड मिडिल क्लास लाइफस्टाइल डजंट हेल्प यू स्कोर बैडीज, और उसके बाद तुम ये ना 20 में वाली ड्रिप रॉक कर रहे हो। नो हेट फॉर द पीपल दैट कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग बियॉन्ड दिस, उनका चलता है भाई, दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, बट बैंड नॉट फॉर यू। इफ यू कैन थ्रिफ्ट थिंग्स एंड यू आर स्टिल नॉट डूइंग इट, यू आर अ फकिंग लेजी बिच। एंड ये रुक जा भाई। आई ऑल्सो डू नॉट कंडोन पीपल फ्लेक्सिंग मोर देन दे कैन अफोर्ड। साले सारी की सारी ऑब्लिगेशन भुला के 20,000 सैलरी में oh it's H&M with a side of pasta bolognese to wash it all down we'll have a virgin mojito maybe a taste of the classic Blue Lagoon। अपनी माँ चुत वाले तू मेरे को बोल रहा है कि नॉर्थ इंडियन चीप फूड ain't got shit on this desi-fied inauthentic pasta bolognese from chef Rajesh Rajwada from Bihar that can't even pronounce the name correctly। You're telling me that? भाई honestly एक चीज पूछूं, मतलब बुरा नहीं मानना, but are you doing this for hoes? And if you're a girl, are you doing this for those nonchalant performativeness from South Delhi? Are you? इन को अट्रैक्ट करना क्यों है तुम्हें? They are equally as broke as you. Longer term relationship and mental stability तो तुम्हें इनसे भी नहीं मिलनी ना भाई। The male counterpart of this crowd believes in spiking drinks of the baddies that they don't deserve or can't afford to have sex with them। फिर भाई उसी बॉडी काउंट के बारे में ग्रुप्स में गा के they attract your gullible ass and do the same exact shit to you। Your body was a conversation starter for them। Nothing more. I stole this from Arpit Bala, added a little bit to it of my own. And the baddies जिन्हें visibly पैसे से प्यार होता है, they're just a fucking expense card for them. Okay, nothing more. Hop off the cope for a second, do some shit. घर वालों के पैसे से बहन चोद लौंडे बंदी घुमा रहे हैं। And लोग इतने retard है ना आज के टाइम पे। अगर मैंने तुम्हें 13 साल की उम्र में 100 करोड़ दे भी दिए ना, तुम पे लट खर्च नहीं हो रहे सही तरीके से। आधा पैसे तो सरकार ही खा जाएगी टैक्स में। एंड बचा के अगर तुमने 70 तक SIP में जोड़ भी लिए तो भाई तुम ही नहीं बचे ना खर्च करने के लिए। एक दोस्त था पता मेरा, मतलब लोकेलिटी में शायद अभी भी रहता है, आई डोंट नो, बट मेरे दूसरे दोस्त ने उससे एक सवाल पूछा कि भाई अगर तेरे को 20 लाख रुपए दिए हमने, what will you do with it? Because थोड़ी सी मतलब मिडिल क्लास हमारी ऐसी फैमिली से आता था तो it's like a big amount। कहता भाई स्कॉर्पियो ले लूंगा, नॉट स्कॉर्पियो ले लूंगा भाई, तेल खरीदने के पैसे नहीं है। एंड देन वी अप द अमाउंट, इट्स लाइक फक इट भाई, 1 करोड़ दे तेरे को जा। कहता भाई 10 स्कॉर्पियो ले लूंगा। ऐसे छूटियों को अगर 100 करोड़ दूंगा तो बहन सोचो क्या करेंगे वो। एंड ज्ञान मत चो, आई नो कार इज अ लायबिलिटी। लेते ही पहले तो रेट हाफ एंड देन ऑन अ रैंडम डे गवर्नमेंट डिसाइड्स टू अनाउंस E20 एंड मोस्ट ऑफ द कार्स आर नॉट कंप्लायंट ऑन इट नाउ बिकॉज यू डिडंट बाय इट लाइक रिसेंटली। तो अगर तुम्हारी लाइफ में फ्रीक्वेंटली कार का यूज नहीं है तो इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। बट ये बैंड आ जाते हैं बीच में बजने भाई। मेरी ना मम्मी ने ना गोल्ड में इन्वेस्ट किया था पहले से, और मेरे पापा ने ना कार ले ली। सो हिज फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज स्टूपिडर देन माय मॉम्स। ओके अबे अनपढ़, इमरजेंसीज नाम की भी कोई चीज होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, माय फैमिली नेवर नीडेड अ कार। ओके मेरा स्कूल बराबर में था, ऑटो लेके चले जाओ, और ना बस तो लगाई रखी थी घर वालों ने। ठीक है, माय डैड इज नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार एंड आई एम अ पैसेंजर डीवा। ओके मेरे को चिल मारना पसंद है, गाड़ी चलाना नहीं। सो नो वन नीडेड इट बट वी स्टिल हैड इट, तंगी में वो भी, बिकॉज वेल माय ग्रैंडमा नीडेड इट। She was sick and she usually required these uncalled for emergency visits to the hospital at night. So it was a necessity. मैंने it is say it was इसलिए बोला कि भाई I pray कि बहन कोई इतना बीमार ना पड़े कि we need a car, but हाँ। And sometimes even smart investments don't make sense sometimes from personal experience. For example, अगर बैंक में सेविंग्स का पैसा ज्यादा हो गया तो you'll pay taxes, right? तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है करंट मार्केट में? लैंड। बट अगर तुम लैंड में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो ना फ्रॉम स्क्रैच, कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, इज जस्ट सेविंग, टैक्स विल फक यू इन द एस। प्रॉपर्टी पे लोन ले लेंगे भाई, लोन पे टैक्स बचता है भाई। अनपढ़, 2 लाख से ऊपर सरकार लोन पे टैक्स रिलीफ नहीं देती। बाकी मैं चुप हो सकता हूँ, गो रिसर्च, मैंने करी थी, बट या दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। सो बेसिकली पैसा बैंक में है तो टैक्स, पैसा बैंक से प्रॉपर्टी में गया तो टैक्स, प्रॉपर्टी सेल करने के बाद इनकमिंग मनी पे टैक्स, एंड फिर वही पैसा बैंक में वापस स्टोर किया तो अगेन बाकी इसकी टैक्स। एंड इसीलिए मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए वाली वीडियो बनाई। आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग बट यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड, मैंने जितनी बकचोदी करी ना उसके अलावा भी देयर आर वेज टू सेव मनी स्मार्टली, बट उसके लिए पढ़ाई जरूरी है भाई। 13 साल की उम्र में चूतिया बनना जरूरी नहीं। आई वोंट गिव यू दीस एडवाइसेस बिकॉज़ आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड तुम चुप जाओगे, ठीक है। एंड आई थिंक पर्सनली भाई अप अंटिल अ सर्टेन पॉइंट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट एंड सेविंग व्हाटएवर यू कैन इज ग्रेट। बट लोगों को ना बैंक अपनी सेविंग्स का पैसा जैसे खर्च करना है उन्हें करने दो। यू कैन नॉट गिल्ट ट्रैप पीपल इनटू डोनेटिंग। आप है ना ये 10 केक एक दूसरे की भसरी पे मार रहे हो ना भाई, इसे आप गरीब को दे सकते थे। अबे भाई बस तेरे को इतनी चिंता तो तू खुद जाके दे दे, ठीक है। बी एन इंस्पिरेशन टू देम। उनको गाली बकेगा, you'll become a villain। वीगनिज्म में यही हो रहा है ना, लोग ऑब्नॉक्शियस हैं इसलिए एवरीवन हेट्स वीगनिज्म। आदमी कमा के उड़ा रहा है तो भाई क्या इशू, बहन 20,000 के 30 1 लाख के पटाखे फोड़ो भाई, क्या फर्क पड़ता है। साला आदमी पूरी जिंदगी गांड किसके कमाता है, उसे 1 साल भी इंजॉय नहीं करने देते भाई। आप है ना पोल्यूशन फैला रहे हो। अब तो शायद मेरे हिसाब से पटाखे भी लीगलाइज होने वाले हैं, मेरे को नहीं पता, बट हाँ। एंड अगर चूतिया तूने ये सब सुनने के बाद ये बोला ना कि भाई लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट, इवन ही मीन्स इट, इस वीडियो का ये मतलब नहीं है।
I'm just asking you to be smart with your money and don't rush your decisions just because your time is running out. You have enough time. You're young. You're smart. Don't fuck your money up. Okay? अबे लाइफ एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि भाड़ में जाए कमाई में तो बेड पे पड़ा पड़ा सड़ूंगा. And give things time. Okay? Calm down. ये एडवाइस लेना बंद करो ऑनलाइन कैमर्स से. Okay? Good things come slow and they stay longer or whatever this code goes like. मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ. But yeah, you're smart. Bye.